हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगाम। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स विल बी डिस्कसिंग द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ एमडीएमएस कोर्सेज इन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगाम, which is also popularly known as KLE Belgaum. Friends, in this video we will be discussing about all the MDMS courses, seat metrics for all the branches, along with its fee structure, and we will also be discussing about the cutoff. What was the previous year's cutoff and what is the expected cutoff for NEET PG 2025. We will also be discussing the most important part, which is the hospital and patient flow. Well, फ्रेंड्स, केली बेलगाम वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1965। काफी पुराना कॉलेज है और ये एक सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी है। फ्रेंड्स, दिस इज अ सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी, दैट मीन्स इट्स काउंसिलिंग कंडक्टिंग बॉडी इज MCC. So if you want to take MDMS admission, that is PG medical admission in KLE Belgaum, then you should have qualified for NEET PG 2025, and after that you should appear for MCC NEET PG counseling. Well, friends, first and foremost we'll discuss about its hospital, which is the most important part when you are trying to pursue MDMS from any of the medical colleges. देखिए friends, when you are planning to pursue MDMS, always give the first priority to any of the medical colleges, hospital and patient flow. This is the most important thing, because right from the day when you will be posted as JR and you will be starting your duty, तो उस कॉलेज को हमेशा आप प्राथमिकता दीजिए जिसकी पेशेंट फ्लो बहुत ही अच्छी हो, because MDMS is all about patient flow. देखिए friends, many of you doctors would have been passed out from KLE Belgaum, and you would be knowing what is the quality of this medical college. This is an excellent medical college and one of the top private medical colleges in India. Friends, hospital देखिए friends, इसके पास दो हॉस्पिटल हैं। जो मेन इन लोग का टीचिंग हॉस्पिटल है, जिसको डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, ये तो डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल की जो टोटल बेड कैपेसिटी है वो है 2400। जो दूसरा इन लोग का हॉस्पिटल है जहां पे आप लोग को भी पोस्टिंग मिलेगी, जहां पे सभी पीजी इंटर्न्स को भी पोस्टिंग मिलती है, दैट इज डॉक्टर प्रभाकर कोरे चैरिटेबल हॉस्पिटल। इसकी अगर बेड स्ट्रेंथ की हम लोग बात करें तो दिस मेडिकल हॉस्पिटल हैज द बेड स्ट्रेंथ ऑफ 1600। सो कलेक्टिवली बोथ द हॉस्पिटल वेयर ऑल द पीजी इंटर्न्स गेट द posting, so collectively the bed strength comes to around 4000. It is a huge hospital, 4000 bed strength, 4000 bedded hospital है friends। और अगर पर डे ओपीडी में इन लोग की हम लोग पेशेंट फ्लो की बात करें, कंबाइंड अगर दोनों हॉस्पिटल्स के पर डे ओपीडी की में पेशेंट फ्लो की बात करें तो फ्रेंड्स इट रेंजेस फ्रॉम 4000 to 4500। दिस इज अ ह्यूज नंबर। ये मेडिकल कॉलेज का जो पेशेंट फ्लो है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है फ्रेंड्स। पर ईयर दिस मेडिकल college caters for 1,50,000 OPD patients. Just see the number. Per year it caters for 1,50,000 OPD patient. I mean, this is a huge number. This is the college where you will be getting the hands-on experience, and you will be getting the maximum amount of the clinical exposure in this medical hospital, friends. If we talk about the bed occupancy rate of this 4000 bedded hospital combined for both the hospitals, the bed occupancy rate is 90%. Just imagine, I mean 4000 bedded hospital की bed occupancy rate 90% है, तो you can imagine कि what would be the patient flow. Per year it caters for 1,50,000. अगर per day हम लोग OPD flow की बात करें तो it is somewhere in the tune of around 4000 to 4500. Name the department and you will get the excellent amount of patient flow, चाहे वो रेडियो हो, गाइनी हो, पीडिया हो, ऑर्थो हो। देखिए ये मेडिकल हॉस्पिटल एक ऐसा है कि it is a pioneer in heart transplants and lung transplant also. इसके पास अगर ऑपरेशन थिएटर्स की बात करें तो दिस मेडिकल कॉलेज हैज 30 ऑपरेशन थिएटर्स। जस्ट इमेजिन 30 OTs इसके पास है। आई मीन दिस इज अ ह्यूज क्वांटिटी। कोई भी डिपार्टमेंट में आप इसके चले जाइए फ्रेंड्स, आपको मतलब खचाखच सारे डिपार्टमेंट्स भरे हुए मिलेंगे ओपीडी आवर्स में। दिस मेडिकल कॉलेज नॉट ओनली caters फॉर द पेशेंट इन द बेलगाम, ना ही केवल बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में, बल्कि जो उसके एडजेसेंट जो बॉर्डर एरिया है गोवा और महाराष्ट्र के, वहां के भी पेशेंट को ये काटर करता है। तो जस्ट इमेजिन, जो मेडिकल कॉलेज 3 स्टेट्स के पेशेंट को काटर करता हो उसकी पेशेंट फ्लो कितनी होगी, एंड द फिगर, द नंबर ऑफ द पेशेंट, व्हाट द फिगर शोज ऑल। आई मीन
1.5 लाख पेशेंट पर ईयर, जस्ट इमेजिन। ये बहुत सारे कुछ कुछ जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इंडिया में उससे भी ज्यादा है। इसके कुछ एक दो डिपार्टमेंट के हम लोग एक दो डिपार्टमेंट का डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स। देखिए सारे डिपार्टमेंट्स को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए इसके पास जो एमडीएमएस के साथ सुपर स्पेशलिटी के भी कोर्सेज हैं और काफी अच्छे नंबर में उसकी सुपर स्पेशलिटी के भी इंटेक है। ये जो आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी, ये जो डिपार्टमेंट है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1997 एंड टिल डेट इट हैज परफॉर्med 26,500 सर्जरीज। जस्ट सी द नंबर ऑफ द सर्जरीज व्हाट इट हैज परफॉर्med टिल डेट। 26,500 सर्जरीज हैज बीन परफॉर्म्ड बाय कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी डिपार्टमेंट। एंड इन 2018 में इन लोगों ने हार्ट ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया था। तो अभी तक इन्होंने 10 सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया है एंड नाउ दे हैव आल्सो स्टार्टेड द लंग ट्रांसप्लांट। So just see the quality of the hospital doctors what it has। देखिए इसका डिस्कशन मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आफ्टर ऑल these doctors are your faculty। यही सब डॉक्टर्स आपके फैकल्टी होंगे। तो जस्ट सी अगर आप देखिए जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी की हमने डिस्कशन की तो दे आर बेसिकली जनरल सर्जन्स। आफ्टर जनरल सर्जरी उन्होंने कार्डियोलॉजी में डीएम किया। तो दीज आफ्टर ऑल दीज ऑल आर योर फैकल्टी। इफ यू आर गोइंग इन जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट दीज आर योर प्रोफेसर्स एंड दीज आर योर फैकल्टी। ये देखिए आप पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट का पर डे का ओपीडी का आप देखिए एक बार। The department provides services for around 150 to 180 outpatients daily। जस्ट सी पीडिया डिपार्टमेंट का 150 to 180 पर डे, केवल पीडिया डिपार्टमेंट का इतना ओपीडी का इसका फ्लो है। तो जस्ट इमेजिन व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ द पेशेंट फ्लो दिस मेडिकल कॉलेज हैज। जो दूसरा इन लोग का हॉस्पिटल है डॉक्टर प्रभाकर कोरे और चैरिटेबल हॉस्पिटल, वहां पे फ्री ट्रीटमेंट है। इवन की आईपीडी में भी सारी चीज फ्री है। तो जस्ट सी। और बेलगाम जैसे डिस्ट्रिक्ट में, बेलगाम इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और साथ में सराउंडिंग एरिया जो उसके नेबरिंग गोवा स्टेट है एज वेल एज महाराष्ट्र के जो दूसरे बॉर्डरिंग एरिया है उसके भी पेशेंट्स को ये काटर करता है। दिस इज द मेडिकल कॉलेज विच शुड बी इन योर प्रायोरिटी लिस्ट। बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है फ्रेंड्स। और अगर आप ऐसा मेडिकल कॉलेज खोज रहे हैं जहां पे कि ह्यूज अमाउंट ऑफ पेशेंट फ्लो है देन जेएनएमसी बेलगावी शुड डेफिनेटली बी इन योर लिस्ट फ्रेंड, डेफिनेटली। अब हम लोग इसके सीट मैट्रिक्स का डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बिकॉज इट इज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी है और इसकी काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी एमसीसी है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीट्स विच आर अवेलेबल। जो पहले टाइप की सीट रहती है वो रहती है आपको मेरिट कोटा की सीट, और जो दूसरी टाइप की सीट रहती है वो है एनआरआई कैटेगरी की सीट। देखिए एनआरआई कैटेगरी की सीट में आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि यू वुड बी रिक्वायरिंग एन एनआरआई स्पॉन्सरशिप। एक जेन्युइन एनआरआई स्पॉन्सरशिप आपको चाहिए। एमसीसी हैज नाउ अलाउड द सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री स्पॉन्सर्स एज वेल, but keep one thing in mind कि the person who is sponsoring you payment should come from his account. The tuition fees payment should come from his account. This is the mandatory clause for JNMC Belgaum। तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। अब जैसे कि सीट मैट्रिक्स, ये देखिए आप सीट मैट्रिक्स में देखिए फ्रेंड्स इनटेक काफी अच्छा है इस मेडिकल कॉलेज का। सारे डिपार्टमेंट्स में इनटेक अच्छा है। जो टॉप के 6 डिपार्टमेंट्स है उसका डिस्कशन हम लोग अभी कर लेते हैं। देखिए रेडियोलॉजी एमडीआरडी में टोटल 15 सीट है, जिसमें से 11 सीट मेरिट कोटा में है और 4 सीट एनआरआई कैटेगरी में है। वही डर्मा में 3 सीट मेरिट कोटा में है, 2 सीट एनआरआई कैटेगरी में है। जनरल मेडिसिन में टोटल 21 का इंटेक है। दिस इज अ गुड इंटेक, दिस इज अ वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ इंटेक। तो 16 सीट उसमें मेरिट कोटा की है और 5 सीट एनआरआई कैटेगरी में है। देखिए इस मेडिकल कॉलेज का एक एडवांटेज क्या है फ्रेंड्स की मेरिट कोटा में बहुत ज्यादा सीटें हैं इन लोग की। मेरिट कोटा में इट हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सीट्स। सो दिस इज एन एडवांटेजियस पोजीशन फॉर यू गाइस। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फी स्ट्रक्चर आफ्टर दिस। पीडियाट्रिक्स, पीडिया में 20 का इंटेक है, 15 सीट मेरिट कोटा में, 5 सीट आपको एनआरआई कैटेगरी में। गायनेकोलॉजी में देखें तो 14 सीट, टोटल 19 का इंटेक है, 19 का इंटेक है, जिसमें 14 सीट इन लोग की इसमें है मेरिट कोटा में और 5 सीट जो है वो एनआरआई कैटेगरी में। जनरल
सर्जरी में 18 का इंटेक है, जिसमें 13 सीट मेरिट में है और 5 सीट एनआरआई में है। सारे ब्रांचेस को आप देखें, अपार्ट फ्रॉम डर्मा, सारे ब्रांचेस की जो इंटेक है वो अबाउट 20 सीट्स की इंटेक है इन लोग के पास। वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ इंटेक दिस मेडिकल कॉलेज हैज। नाउ द फी स्ट्रक्चर, ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये फी स्ट्रक्चर है पर एनम। दिस इज द पर एनम फीस ऑफ जेएनएमसी बेलगाम। रेडियो डिपार्टमेंट की देखें तो 33,82,000 पर एनम की फीस है, और वही एनआरआई कैटेगरी में $1,20,000 फीस है। देखिए एनआरआई कैटेगरी में, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि इफ यू आर गोइंग थ्रू एनआरआई कैटेगरी, देन द पेमेंट ऑफ द फीस शुड कम फ्रॉम द पर्सन हु इज स्पॉन्सरिंग यू। काइंडली कीप दैट थिंग इन माइंड, दैट हैज टू कम इन US dollars. डर्मा की फीस भी सेम है, 33,82,000 पर एनम मेरिट कोटा में, और एनआरआई कैटेगरी में 1,20,000। मेडिसिन 33,82,000 सेम फीस, एंड एनआरआई कैटेगरी में फीस कम है $98,300। पीडिया में भी वही है, पीडिया में कम है फीस 30,30,000 और $98,300। ओबीजी और सर्जरी का भी फीस आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए तो फीस जो है इन लोग की एज कंपेयर टू दी अदर कॉलेजेस एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ फीस है। जैसे रेडियो और डर्मा की देखें तो 33 लाख रुपीस फीस इन मेरिट कोटा इज नॉट दैट एक्सपेंसिव, उतनी हायर साइड पे इन लोग की फीस नहीं है। अगर आप देखिए प्राइवेट, देखिए जो भी सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती है उनकी फीस जो है वो थोड़ी हायर साइड पे ही रहती है, लेकिन ऐसे भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे फीस उन लोग की रेडियो डर्मा की आप देखें तो 50 लाख 60 लाख उस रेंज में रहती है। तो ये इन लोग का फीस स्ट्रक्चर है। मोस्ट प्रोबेबली द फीस स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम, देयर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि दे विल रिवाइज इट। लेट अस सी इफ एनी अपडेट ऑफ द फीस रिवीजन comes, we will update you accordingly. Now the most important part, the कट ऑफ। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं ये राउंड 2 और राउंड 3 का कट ऑफ है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप काउंसलिंग को एमसीसी नीट पीजी काउंसलिंग को अप्रोच करते हैं तो राउंड 2 हैपेंस टू बी द बेस्ट पॉसिबल राउंड जहां पे कट ऑफ सबसे लोअर साइड पे रहती है। हमने राउंड 2 और राउंड 3 दोनों का कट ऑफ, ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, दोनों का कट ऑफ दिखाया है। लेकिन पूरे लिस्ट को अगर आप देखिएगा तो यू विल बी गेटिंग द पॉइंट कि राउंड 2 हैपेंस टू बी द मोस्ट लोएस्ट कट ऑफ। Now let us discuss about the cutoff in detail. Dermatology, radiology, MDRD, 13,987 was the cutoff in round 2. 13,987 was the cutoff in round 2, and वही round 3 में cutoff increase हो गया था, and the round 3 cutoff was 13,517. अब keep now note one thing. देखिए friends, in spite of the fact that its fees is on the higher side, that is 33 lakh rupees, but then also the radiologist cutoff is 13,987. तो मान के चलिए 14,000, 33 लाख रुपीस पर एनम फीस पे भी 14,000 का अगर कट ऑफ जा रहा है तो दिस इज एन इंडिकेशन कि हाउ एक्सीलेंट दिस कॉलेज इज, एंड ये कॉलेज कितने डिमांड में रहता है। देखिए कर्नाटका के जो केईए के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, देयर फीस इज अराउंड 13 लाख रुपीस पर एनम, एंड द रेडियोलॉजी कट ऑफ गोज टू अराउंड समवेयर अराउंड 7 to 8 lakhs. Here the fees is almost 2.5 times, but in spite of the fact the fees is almost 2.5 times, the cutoff is around 14,000 all India rank, I mean under 15,000. So this shows कि how demanding this college is and how excellent this college is, friends. Derma, look at the cutoff of Derma in round 2, 7,683. Just imagine, under 10,000 rank, 13 लाख वाले केईए के फीस में ये कट ऑफ जाता है डर्मेटोलॉजी का, लेकिन यहाँ पे डर्मेटोलॉजी की इसकी फीस जो 33 lakhs है उसकी कट ऑफ 7,683 गई। तो जस्ट सी द हाई कट ऑफ। वही राउंड 3 में से डर्मा वाज एन एक्सेप्शन कि राउंड 3 में जो है डर्मा का कट ऑफ लोअर साइड पे गया था 12,850। देखिए एक्चुअली इसके पीछे रीजन क्या है कि जिन बच्चों को अब देखिए जो 7,600 रैंक वाले बच्चे हैं तो दे विल बी गेटिंग डर्मेटोलॉजी इन 13 लाख रुपीस फीस इन केईए आल्सो। सो दैट इज द रीजन कि डर्मा में आपको कट ऑफ थोड़ा लोअर साइड पे दिख रहा है राउंड 3 में, बट दिस इज नॉट द केस विद ऑल द अदर एमडीएमएस ब्रांचेस। जनरल मेडिसिन 19,403 वाज द कट ऑफ इन सेकंड राउंड, और वही राउंड 3 में देखिए राउंड 3 में वापस कट ऑफ इंक्रीज हो गया 18,606। देखिए राउंड 3 में हमेशा सारे ब्रांचेस के कट ऑफ इंक्रीज हो गए हैं।
pediatrics 30,117 was the cutoff for round 2 and the round 3 में cutoff गया 30,120. Same story. Gynecology में 30,339 was the cutoff for gynecology and वही cutoff round 3 में देखिए round 3 में gynecology increase कर गया था 32,200. This was the thing for gynecology. General surgery 39,515 was the cutoff in round 2 and round 3 there were no seats available. No seats available in round 3 for general surgery in JNMC Belgaum. So this is the level of this college, friends. See, you can see such a high cutoff. Itna higher cutoff in spite of the fact कि all the fee structures are about 25 lakh rupees per annum. Because the quality of this college is excellent and this happens to be the most demanding college for MDMS courses, that is the reason कि इसका cutoff बहुत higher side पे जाता है. अगर इसको हम लोग अब summarize करें, सारे पूरे डिटेल्स को summarize करें तो friends देखिए very excellent college. This is the college which is going to provide you the maximum amount of the clinical exposure. I mean जो एक MDMS कोर्स में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जिस लेवल का पेशेंट फ्लो आपको देखने को मिलता है, दैट विल बी दी पेशेंट फ्लो व्हाट यू वुड बी सीइंग इन केएलई बेलगाम. दिस इज एन एक्सीलेंट कॉलेज एज फार एज क्लिनिकल एक्सपोजर इज कंसर्न. दिस कॉलेज शुड डेफिनेटली बी इन योर प्रायोरिटी लिस्ट, फ्रेंड्स. तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो रिगार्डिंग जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगाम. अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द latest updates regarding NEET PG 2025 and NEET PG counseling. Thank you, friends.